Hello friends, I'm Payal here and welcome to our new channel Banking Life Payal 2. So guys, today's the topic is how to attempt math section in pre-examination. So this is the first class of the math series and so this is the Board Bank PO test, free full test that I'm showing you, and with the help of which I will share my strategy of how I attempt the math section in Bank PO pre-examination. So it has 35 questions and 20 minutes. Alright, for the quantitative aptitude section, it has sectional timings. So before starting the test, I will within 30 seconds I will first mark those question. I will mark for review those question which I'm gonna do first. So as you know, there are at least two DIs in math section that come up nowadays. So first of all, I will mark the DIs. I will find out where are the DIs in the math section. So it is from 10 to 14 and 19 to 23. So 10 questions of DI, and next are the approximation question. There can be quadratic questions also or simplification questions also. So in this section there are number series are given, missing number series and approximation questions. So 20 questions are these of DI, number series and approximation out of the 35 questions. So first of all, I'm gonna attempt the easy questions like the approximation question. I will try to complete all 5 questions within 2 minutes, and then I will switch to the DI. I will first do the easy one. Out of the 2 DIs, I will first do the easy DI. And there is one tough DI always in the exam that come up, and one easy DI. So I will first do the easy DI, and then I will do the other DI, because you should do the data interpretation questions first, because these are time consuming, and I will try to complete it in the 10 questions in maximum 6 minutes, and then I will do the number series question, as these are easy. If a wrong number series question come, I usually do it in the last, because uh, those are really, I mean, tough. So after that, after completing the number series question, 5 number series question within 2 minutes, then I will do the miscellaneous questions. So um try to complete at least 20 questions within 12 minutes. That should be your proper speed for attempting more questions in maths section. Otherwise you won't be able to get high score. And then I will do the miscellaneous questions, and there are some data sufficiency questions, as you can see here, question number 5 and question number 6, like these. So these are time consuming, all right. And I usually attempt them at the last, and first of all, I will find those miscellaneous questions which are easy, and which are related to those topics in which I am expert, or I have good practice of those topics. So I will do questions of those topic first in miscellaneous, and I generally don't do the probability question. There can be one or two only. So um, in the remaining 8 minutes, I try to do at least minimum 10 questions. So, and if your speed is good, and your concept clarity is good in maths, you can attempt all 35 questions also in 20 minutes. So for that, you should do a lot of practice for the math section. And that was all for today. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बैंकिंग लाइफ पायल में। और आज मैं मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आज पहली क्लास है मैथ्स की, मैथ सीरीज़ की। और आज का टॉपिक है कि हाउ टू अटेम्प्ट मैथ सेक्शन इन प्री एग्जामिनेशन, कि मैथ्स का सेक्शन कैसे अटेम्प्ट करें। उसके लिए मैंने एक मॉक टेस्ट यहाँ पे लिया है। स्टार्ट कर रही हूँ मैं ओली बोर्ड का, बैंक पीओ का। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे, मतलब मेरे सीक्वेंस क्या रहता है क्वेश्चंस का। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है उसमें 35 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि हमें 20 मिनट में करने होते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में दिए जाते हैं। तो सेक्शनल टाइमिंग होती है ज़्यादातर, और विद इन 30 सेकेंड, मतलब पहले 30 सेकेंड में मैं वो क्वेश्चंस मार्क फॉर रिव्यू करती हूँ जो मुझे करने हैं। तो ज़्यादातर क्या होता है कि आजकल टेस्ट में क्या आ रहा है कि 2 DIs तो आते ही आते हैं, ठीक है। एक इजी आता है, एक टफ़ आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं दोनों DIs हैं उनको मार्क फॉर रिव्यू कर दूंगी जैसे ही मुझे मिलेंगे। तो ये मुझे मिले 10 to 14 पे है,
एक DI और एक है 19-23 पे। तो इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। इसके बाद मैं बाकी के इजी क्वेश्चंस ढूंढूंगी, जैसे नंबर सीरीज़ हो गए, ये देखो अप्रॉक्सीमेशन आ गया तो ये वाला मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, या अगर क्वाड्रेटिक का आ गया, सिंप्लीफिकेशन आ गया। तो इसमें नंबर सीरीज़, मिसिंग और अप्रॉक्सीमेशन दे रखा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अब विदिन 2 मिनट्स, 2 मिनट के अंदर मैं 5 क्वेश्चंस करूँगी अप्रॉक्सीमेशन के, ठीक है। उसके बाद मैं नंबर सीरीज़ करूँगी मिसिंग वाली 5 क्वेश्चंस विदिन 2 मिनट्स। अगर रॉन्ग नंबर सीरीज़ आई होती तो मैं उसको एट द एंड करती हूँ, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होती है थोड़ी, और मिसिंग नंबर सीरीज़ ईजी होती है। अदरवाइज़ अगर मिसिंग नंबर सीरीज़ की जगह यहाँ पे क्वाड्रेटिक दिया होता तो वो मैं करती, और अगर वो नहीं दिया, रॉन्ग नंबर दिया होता, तो मैं सिर्फ फिर सीधा DI पे चली जाती। तो ज़रूरी नहीं है कि DI के आपको पाँचों के पाँचों क्वेश्चंस करने हैं। एक तो क्या है कि पहले 2 DIs जो होते हैं ना, उसमें से देख लीजिए, एक थोड़ा सा टफ होता है। अगर दोनों ईजी आ जाएँ तो बहुत अच्छी बात है, बट जनरली क्या होता है, एक टफ होता है, एक ईजी DI होता है। तो पहले ईजी DI को कीजिए, उसके बाद टफ DI को कीजिए, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि DI के भी पाँचों के पाँचों क्वेश्चंस आपको करने हैं। कुछ एक क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कई बार कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, उसको आप लास्ट के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। तो दोनों DIs मैं कोशिश करती हूँ कंप्लीट के 6-7 मिनट में, मैक्स टू मैक्स 7 मिनट में कर लूँ मैं। तो ये 20 क्वेश्चंस हो गए टोटल। और कोशिश कीजिए कि पहले 12 मिनट जो होते हैं 20 मिनट में से, आप उनमें कम से कम 20 क्वेश्चन कर दीजिए, आपकी इतनी प्रैक्टिस हो मैथ्स में, ठीक है। वरना आप हाई स्कोर नहीं कर पाएंगे अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है। उसके बाद मैं मिसलेनियस पे जाती हूँ, मिसलेनियस क्वेश्चंस करती हूँ। मिसलेनियस में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि कुछ डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस हैं, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5, 6। तो ये क्या होता है, ये ना टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो इनको लास्ट में करना चाहिए। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप पहले भी कर सकते हैं, बट मैं जनरली इनको लास्ट में ही करती हूँ। और सबसे पहले मैं वो क्वेश्चंस करती हूँ जो उन टॉपिक से रिलेटेड हैं जिनमें मतलब मैं एक्सपर्ट हूँ, या जिनमें मेरी प्रैक्टिस अच्छी है, जो मुझे बिल्कुल अच्छे से आते हैं। तो मिसलेनियस में भी मैं वो टॉपिक करती हूँ जिनमें मेरी पकड़ अच्छी है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी है, और जो टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। तो जो आखिरी के 8 मिनट हैं उसमें मिनिमम टू मिनिमम मैं 10 क्वेश्चन तो करने की कोशिश करती हूँ कि हाँ मेरा 30 तो हो जाए मैथ्स में। अगर आपकी मैथ्स में स्पीड अच्छी है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो आप 35 क्वेश्चंस भी कर सकते हो विदिन 20 मिनट्स। तो ऐसा कुछ टफ नहीं है मैथ्स। बस ये है कि आपको मतलब हर कॉन्सेप्ट की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप क्विजेस अटैम्प्ट कीजिए, और स्पीड टेस्ट होते हैं जैसे कि टाइमिंग वाले ग्रेड अप पे मैंने बताए थे, तो वो कीजिए। और उससे क्या होगा कि आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। तो स्पीड बहुत मैटर करती है मैथ्स में, और एक्यूरेसी, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो इसमें मार्क्स भी ज़्यादा आते हैं, बिकॉज इसमें ना एक्यूरेसी की भी गारंटी रहती है कि 100%। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।